I now invite Dr. Abhikriti Shukla to introduce our esteemed guest speaker. Thank you, Ruchira ma'am. Good morning to all. It is my privilege to introduce an eminent personality, Dr. Raman R. Gangakherkar, to the gathering. Dr. Raman R. Gangakherkar has been awarded as Padma Shri in 2020, the fourth highest civilian award in India for his service and research in HIV/AIDS. He was designated as former head Division of Epidemiology and Communicable Diseases, Indian Council of Medical Research, New Delhi, and Director in Charge, National AIDS Research Institute, Pune. Dr. Raman is a member of National Task Force Clinical Research Group, Epidemiology and Operational Research Group on COVID-19. He is also member of Lancet Commission Empowered Group 2 on COVID-19 and Scientific Advisory Board of ICMR. Dr. Raman is a member of high-level Interministerial Steering Committee for Eco-Health Initiatives in India, constituted by Ministry of Health and Family Welfare. Dr. Raman is a chairman of Technical Resource Group on Public-Private Partnership and TRGs on Antiretroviral Therapy and Pediatric Art, constituted by the National AIDS Control Organization. Dr. Gangakherkar is a member of Technical Resource Group on Surveillance of Viral Hepatitis, constituted by the National Center for Disease Control. He is an expert to the Standing National Committee on National List of Medicines. Dr. Raman has been working in the field of HIV disease for over 3 decades. He is an expert in HIV medicine and associated infectious diseases, epidemiology, and public health. He was one of key players in advocacy since 1989 and has been involved in policy making at national level on antiretroviral therapy, management of opportunistic infections, prevention of mother-to-child transmission, and STI management, in addition to other key population-specific policies. Dr. Gangakherkar is a popular and astute HIV medicine physician. He has been a member of many prestigious international committees on different facets of HIV disease, including those constituted by ACTG, WHO, UNICEF, UNFPA, and UNAIDS. His efforts to empower the socially challenged populations and enhancing their treatment literacy are widely appreciated. Presently, Dr. Raman R. Gangakherkar is working as Dr. C.G. Pandit National Chair, Indian Council of Medical Research, and as head of ECD. He managed research and contributed to public health response in recent outbreaks of Nipah, Zika, and COVID-19. Thank you, sir, for sparing your valuable time and being with us today. I now request you to please address the gathering. Thank you, Shukla madam. Let me first thank Pasari ji, then Muchal sir, and Dr. Dhar, and the entire management to have provided me this opportunity to talk on this particular issue. I was told to speak in Hindi. I really don't know, but all of you perhaps are aware that when I used to speak. You are most welcome, sir. If you want to speak in Hindi, you are most welcome. If you want to speak in English, so it is totally left to you. No problem. चलिए हिंदी में बात करता हूँ. मुझे एक याद है, मैं जब हिंदी में उधर बात करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोग बोला करते थे ये मराठी हिंदी है. मैं बोलता था जब तक ना कोई भी बात करो, क्योंकि मैं कुछ चीजें जिंदगी में सीखा हूँ. मेरा पूरा टाइम ये एड्स के बीमारी पे काम करने में गया, और मेरे पेशेंट जो है वो तो गरीब लोग रहते थे, जैसे कोई सेक्स वर्कर रहे, कोई मेन हैविंग सेक्स विद मेन वाला ग्रुप है, हिजड़ा लोग आते थे, और बाकी के तबके के तो लोग आते ही हैं. लेकिन एक चीज सीखा कि हमको जो बात हम करते हैं वो सबसे कम सीखे हुए इंसान को भी समझना, ये हमारा एक चैलेंज होता है. ये अगर मैं नहीं समझा पाया तो उसमें उसकी गलती नहीं है, वो तो गलती मेरी है. मुझे ये समझना है कि वो ऐसे क्यों है, वो सोशली चैलेंज पॉपुलेशन में वो इंसान क्यों है, वो तो उसकी परवरिश जैसे हुई होगी,
उसको जो पैसा उसके माँ बाप के पास होगा, उसको सीखने का चांस मिला या नहीं मिला, लेकिन उसका दिमाग जो होता है वो मेरे बराबरी का ही था जब वो पहले था। उसके परवरिश की वजह से वो ज्यादा सोच नहीं सकता, लेकिन हर इंसान ये इक्वल होता है। उसको अगर हमने सही ढंग से पढ़ाया तो जैसे मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन मेरे उतना ही अच्छा वो इंसान सोच सकता है। तो ये सोच तो मैं वहां बोलता था जब कभी वहां चर्चा होती थी। अब जो भी भाषा रहे, आप उसको मराठी हिंदी बोलो या सिर्फ हिंदी बोलो, जब तक समझ में आती है तो भाषा काम की है। अगर ना समझे तो वो भाषा का मायना नहीं है। आप एकदम खतरनाक अच्छे ढंग से बहुत शुद्ध बात करते होंगे, लेकिन सामने बैठा हुआ इंसान उसको वो शुद्ध भाषा समझ नहीं रही है, तो उसकी शुद्धता, उसका फायदा क्या हुआ, उसके ऊपर हमने सोचना चाहिए। तो आज चलो हिंदी में बात करने की फिर एक बार कोशिश करता हूँ। हमको एक बहुत समझना है, ये कोविड की बीमारी जो है ना, ये एक किस्म का बुरा सपना है वैसे आई ना। 31 दिसंबर को 2019 को पहली केसेस का रिपोर्ट जो चाइना से पब्लिश हुआ। अब चाइना से जब पब्लिश हुआ, लोगों को ऐसे नहीं लगा ना हमको लगा था। 11 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग हुई। वो मीटिंग में WHO के जो इंडिया चीफ रहते हैं, वो उन्होंने बताया कि चाइना में ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये 4-5 लोग हम बैठे हुए, ऐसा कभी लगा नहीं कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। सच बोलना है तो मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता, भले पब्लिक में भी रहो तो भी। लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे मेरे मन में क्या आया, पहले ये सार्स आया, बाद में मर्स आया, ये कहाँ हमारे यहाँ इतने बढ़ गए। लेकिन ये जो बीमारी है ये भी ऐसी हो जाएगी, थोड़े दिन इधर उधर दिखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जिस ढंग से वो चाइना में अगले 10 दिन में बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा डर महसूस होना शुरू हो गया। और उसकी वजह से 17 तारीख के आगे हर रोज कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सारे सेक्रेटरीज को लेके साथ में इसके ऊपर डिस्कशन के लिए बैठते थे कि कैसा लड़ना है। आप अगर मुझसे पूछे तो मैं उसमें था, वो लड़ाई में शरीक इसलिए नहीं, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स में काम किया। मैंने इतना बड़ी सोच सबको साथ में लेके जाके जल्द से जल्द रिस्पांस वाली मैंने कभी देखी नहीं। अब ये तो आगे समय बताएगा कि हम कितने विजिलेंट आगे हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट वेव में आपको सबको पता है वो तो सिचुएशन ही बहुत खराब थी, क्योंकि न हमको समझता था, हम दूसरों को समझाने जाना है। और आपको सबको मालूम है जब लॉकडाउन लगा तो सबसे बड़ा खतरा क्या था सामने। जब मैं बैठता था वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सबसे बड़ा डर क्या था, हमारी है डेमोक्रेटिक कंट्री, वो 138 करोड़ 35 करोड़ के नजदीक लोक संख्या है। अब इस हालत में हमको सबको मालूम है, अगर हमने किसी भी जगह पे 100 लोग अगर जमा हुए हैं, उनको सबको बोला कि हमने सबने मिलके ये काम करना चाहिए, तो उसमें से 50 लोग आपको अपोज करेंगे, 50 लोग बोलेंगे मैं मानूंगा नहीं, 50 लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। अब इतनी बड़ी हमारी लोक संख्या, अगर वहां लॉकडाउन बोले तो लोग सुनेंगे क्या? लेकिन उनको सुनाना है, पैनिक आने नहीं देना है, क्योंकि वहां दोनों को भी समझता नहीं, ये भी तो सच्चाई थी। न लोगों को समझता है, न जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स न उनको भी समझता है। अब करें क्या? तो सच बोलना, लोगों को समझा के बोलना, यही एक चारा था। अब हमने ये 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में हमको बहुत सारी चीजों का पता चला। सबसे बड़ी बात हमको क्या पता चली? सबसे पहले ये समझ में आया कि ये इस किस्म की बीमारी न, चाइना में से वीडियो आते थे, चाइना में मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ। हम एक चीज समझ में आना शुरू हो गया, वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसका रीजन जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से है। अब ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है क्या? आप लोगों को, जो कोई इन्फेक्टेड होगा उसको हम जल्द से जल्द ढूंढ के उसको आइसोलेट कर पाए
ना, उसको आइसोलेट करने के लिए वो लोगों ने तो मिलिट्री भी इस्तेमाल किया, जो हमारे देश में करना ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, लॉकडाउन लगाए, उसका हमने चांस लिया कि उसमें हमारे पास की कैपेसिटी बढ़ाई, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। सच्चाई ये थी कि हमारे पास मास्क पहनने के लिए N95 मास्क नहीं है इतने, वो बाहर से इंपोर्ट हुआ करते थे। आप जो डॉक्टर्स को जो किट्स देखते हैं पीपीई के, वो किट्स नहीं थे, वो कैसे लड़ेंगे इसका पता नहीं था। आप जो चीज बोलेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए किट नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए रिएजेंट नहीं है, सारे लैब्स में टेस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक लैब थी जहां टेस्ट होता था, NIV पुणे में। लेकिन सारे देश भर में सबको टेस्ट करने के लिए अवसर मिलने के लिए हमको लैब खड़े करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, आज तक हमारे मॉलिक्यूलर टेस्ट हम कभी इतना पेरीफेरी में किए नहीं थे, अब कैसे होंगे? आप जैसा बोल रहे थे सर, डॉक्टर धर जैसे बता रहे थे, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग सीख लिया। ये पूरा के पूरा लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये सारा खड़ा हुआ है वो वर्चुअल ट्रेनिंग के ऊपर। वो किसी के साथ फिजिकल तो बात ही नहीं कर सकते थे। वहां जब इवन किट्स जाया करती थी, वो सारी की सारी किट्स ना, लॉकडाउन लगने के बाद में फ्लाइट्स बंद है, तो इवन आर्मी के या कार्गो प्लेन्स जो जाते थे उसमें से ये भेजने की कोशिश हुआ करती थी। थोड़ा टफ टाइम था, लेकिन उसमें से हम अच्छे ढंग से उभर के आए, पहली वेव अच्छे ढंग से कंट्रोल करी। लेकिन हम ये मानते हैं ना, ये बीमारी थोड़ी सी अलग है। इसको अलग क्यों मानना चाहिए? ये रेस्पिरेटरी रूट से आती है। अब रेस्पिरेटरी रूट में से आने की वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अभी नया शुरू हुआ है, वो एयरबॉर्न रहता है, यानी वो किसी के सांस में से निकले और किसी के शरीर में जाए। एक किस्म का डर पैदा हो जाता है ना। सबसे बड़ी बात हमको कुछ चीजों के बारे में समझना है। ये बीमारी जो है, ये बीमारी को इतनी डरने की जरूरत है क्या? डरना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो लगती है, आज जो समझ है उसमें जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर की है, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस किस्म की बीमारी है, उनमें ये बीमारी लगने के बाद में मौत होने का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये लोगों में डर बढ़ता है, लेकिन जो यंग लोग होते हैं, वो यंग लोगों को इतना तकलीफ होगा या उनका डेथ होगा ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है कि क्यों ये लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये बंद करना पड़ा। अगर घर घर में हमारे यहाँ मालूम है बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनकी मौत नहीं होना है तो बाहर से इन्फेक्शन घर के अंदर लेके आना, ये बहुत खतरा बन सकता है बुजुर्ग लोगों के लिए। अब इसके खिलाफ कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो दवा की वजह से हम उसको पूरा ठीक कर पाते हैं। सारा पैनिक था, पैनिक में लोग जो दवा लगे वो दवा इस्तेमाल करके देखते थे क्या इससे फायदा होगा। आप देखते हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी रोकने के लिए हमारे पास क्या था? हमको ये समझ में नहीं आता था कौन से इंसान को बीमारी लगी है, क्योंकि वो इंसान के अंदर कुछ ऐसे कोई लक्षण ना दिखे, वो एसिम्प्टोमेटिक भी रहे और वो इंसान भी ट्रांसमिशन करने में कामयाब हो जाएगा। अब ये इतने खतरे रहते वक्त हमको 2-3 चीजों के बारे में पता चला। सबसे पहली बात क्या कि ये बीमारी का कीड़ा जो होता है, विषाणु जो होता है, ये विषाणु एक बार शरीर के अंदर गया तो 3 से 5 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब लक्षण भी तो ऐसे अजीब हैं, वो आमतौर पे जो जैसे सर्दी जुकाम जैसा शुरू होता है ना, बदन में दर्द होगा, हेडेक होगा। अब इसको कौन सोचेगा कि ये इतने खतरनाक बीमारी का लक्षण होगा करके। तो सबसे बड़ा डर क्या था? लक्षणों के बारे में चर्चा करते वक्त हमको ये पता चलता था कि आमतौर पे जैसा हमारा अप्रोच होता है कि जिसमें ना कोई लक्षण देख के उसको हम टेस्ट ऑफर करते हैं, तो सब लोगों की टेस्ट करना ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होता है। लेकिन इसमें तकलीफ क्या है? सादा बुखार भी आया तो भी आपको टेस्ट ऑफर करने की नौबत आएगी। दूसरे किसी बीमारी से हुआ होगा ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी हो गई है क्या ये देखने के लिए टेस्ट करे बगैर
हमको समझना बहुत कठिन रहता है। अब मुझे टेस्ट करना है तो कौन सी जांच होगी, वो उसमें आरटीपीसीआर। अब ये आरटीपीसीआर क्या होता है, ये यानी कम मात्रा में भी अगर कोई विषाणु अपने शरीर में होगा तो उसको एम्प्लीफाई करके उसको उसके ज्यादा विषाणु आर्टिफिशियली एक प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम पैदा करते हैं, और वो करने के बाद में हम उसकी पहचान प्राइमर्स करके होते हैं। वो प्राइमर्स के सीक्वेंसेस के ऊपर हम उसको पहचान लेते हैं कि ये विषाणु उसमें आया होगा। अब ये आरटीपीसीआर करना है तो आरटीपीसीआर ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अब हर वक्त आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा क्या? हर वक्त आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आता है। ये जो आरटीपीसीआर करना है तो हमको दो चीजें याद रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या, जिसको लक्षण है उसमें अगर आरटीपीसीआर किया तो वो पॉजिटिव आने का चांस, अब ये सादी भाषा में बोल रहा हूँ, 70% होता है। यानी 30% लोग जो हैं उनकी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आने का डर होता है। उनको आपको बाद में जब वो बढ़ती है बीमारी तो और एक बार रिपीट करने की भी नौबत आ सकती है। ये फिर भी कि आरटीपीसीआर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छी टेस्ट करके मानी जाती है। लेकिन हमको इतना समय नहीं मिला है कि कोई नई ऐसी टेस्ट ढूंढ के निकाले जिसमें 100% ना किसी को बीमारी अगर है तो वो हम देख पाएंगे। अभी आरटीपीसीआर में हम दूसरा रास्ता क्या देखते हैं कि दूसरा रास्ता ये देखते हैं कि हमको अब हम बार बार हम एक क्या सोचते हैं कि आरटीपीसीआर के लिए सैंपल कहाँ से लेना है, वो नाक में से लेते हैं, वो फेरिंग्स में से, नेजोफेरिंग्स में से लेते हैं, और ये स्वैब जो होता है उसको एक बोतल के अंदर डाल के उसको टेस्ट परीक्षण करने के लिए भेज देते हैं। अब जब ये सैंपल्स जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एक आधा जो मरीज होगा उसका पहचानत हो जाएगी कि इसकी टेस्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आ गई तो हम क्या बोलते हैं, उसने खुद को आइसोलेट करना है, और जिसकी पॉजिटिव आएगी उसको हम बोलते हैं, पूछताछ करते हैं कि आपके किन किन लोगों के साथ ये पिछले कई दिनों में संबंध आए थे, किसको आपकी मुलाकात हुई थी और आपने उस टाइम पे मास्क या कुछ पहना था क्या। अब ये पूछना क्यों जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे कौन से आदमी को हुआ है ये पता नहीं चलता, उसने किसको दिया है ये पता नहीं चलता, लक्षण तो साधारण से है। अब वो अगर कहें कि कोई भी, जो समझो मैंने बताया कि 10 लोगों को हो गया, अगर 10 लोगों के साथ मेरा संपर्क हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग, इसको हम कांटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, ये कांटेक्ट ट्रेसिंग हो गया तो उनको जाके पूछूंगा, उसको ये बोलूंगा, उसको खुद को, कि आप भी वो लोगों को बोलना कि मैं पॉजिटिव हुआ हूं, और आपको अगर लक्षण आए तो आपने डॉक्टर को बताना है, लेकिन खुद को भी आप आइसोलेट करके रख लीजिए। ये क्यों, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे को बीमारी नहीं लगना है। मैंने जैसे पहले बताया, ये विषाणु अगर समझो उसी वक्त मैं किसी इंसान को 2 दिन पहले मिला या एक ही दिन पहले मिला था, उसकी टेस्ट बाद में पॉजिटिव आई नेक्स्ट डे को, तो अब मेरे शरीर में अगर वो कल गया हुआ है तो उसके लक्षण आने के लिए मुझे 3 से 5 दिन का समय लगेगा। तो मैं जो कांटेक्ट होता है वो कांटेक्ट को मैंने कब टेस्ट करना है, वो 3 से 5 दिन का समय होने के बाद में उसकी एक टेस्ट करना है। उसको अगर लक्षण पहले आए तो उसको उससे भी पहले जब भी लक्षण आएंगे उस टाइम पे मैंने टेस्ट करके वो टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है वो देखना है। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर आप किसी से अगर बात करें और समझो मैं खुद समझ लीजिए मैं पॉजिटिव आया, तो उसकी वजह से पहला मेरा डर क्या शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं घर में के कितने लोगों को दिया होगा। मैं दूसरों को बोलूं तो मुझे ये डर लगता है, लोग बोलेंगे अरे अगर उसमें पॉजिटिव अगर आ गया दूसरा कोई तो वो बोलेगा ये आदमी है ये बेकार ना, इसने मुझे बीमारी दिया। तो मैं पहले क्या सोचूंगा, मैं सबके नाम क्यों बोलूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप अगर सबके नाम ना बोलेंगे, उनको अगर बोलेंगे नहीं, तो उनकी वजह से उनकी फैमिली भी खतरे में आएगी, उनके घर में रहने वाले बुजुर्ग लोग भी खतरे में आएंगे।
इसलिए बोलना ना ये बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों ने पहले क्या सोचना चाहिए, ये बीमारी के लक्षण अगर हमको लगे तो बगैर झिझक के हमने किन किन से अपनी मुलाकात हुई वो हमको बोलना पड़ेगा। अब ये क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि जैसा पहले मैंने बताया आमतौर पे हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं उसमें बीमारी बढ़ने का लगने का चांस ज्यादा होता है। ये क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या थोड़े हवा में जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें से अगर मुझे बीमारी है तो वो मैं बात करते वक्त जो हवा निकलती है उसमें ये विषाणु रहेगा और वो मेरे अंदर जाने का चांस बन जाएगा। ये रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं, आपको 2 गज की दूरी रखना है, क्योंकि 2 गज की आप दूरी रखेंगे तो जो भी वो विषाणु आ रहे हैं वो डायरेक्ट मुंह के ऊपर गिरेंगे, ये चांस हम कम करते हैं तो बीमारी लगने का चांस उतना ही कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि आप मास्क पहन के रहिए। मास्क पहन के रहने में क्या है कि मास्क की वजह से ये जो N95 मास्क होते हैं या आमतौर पे जो 3 लेयर वाले मास्क होते हैं जो आज हम बोलते हैं कि 2 मास्क पहना करिए, ये अगर लगाए तो ये विषाणु हमें वो हवा में से हमारे शरीर में जाने में उसको दिक्कत होगी। अब जब ये सब होता है तो भी हम सबको मालूम है कि बच्चे जब बाहर रहते हैं या लोग एक में से मिलते हैं तो कई कबार ना लोग आपस में जब मिलते हैं तो ये सेफ डिस्टेंस रखना, ये मास्क बगैर पहने हुए नहीं मिलना है, इसका पालन होना थोड़ा सा कठिन होता है। अब स्कूल में क्या होगा या आप कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहला प्रेशर कहाँ से आता है, सबसे पहला प्रेशर हमारा शुरू होता है कि हम जब जाएंगे तो आपके पुराने दोस्त मिलेंगे। आपको तो सबको मालूम है पुराना दोस्त मिला तो हम गले में हाथ डाल के उससे बात करने में खुशी महसूस करते हैं। हम आपस में कहीं कैंटीन में जाने की बात करते हैं। मैं अगर कैंटीन में जाऊं तो आपको याद है, आपको कितना भी माँ बाप ने पढ़ाया होगा कि आपने मास्क पहन के रखना और 2 गज की दूरी रखना है, लेकिन 2 गज की दूरी रखने के लिए हम तैयार नहीं होते। वो तो मेरा जिगरी दोस्त है, अरे वो तो उतना भी 3-4 महीने वो घर के बाहर नहीं निकला है, लेकिन आप ऐसा भरोसा नहीं रख सकते। आपको अपना जिगरी दोस्त भी रहे तो भी उसको शायद बीमारी होगी, इसलिए आपको भी मास्क पहनना है, सामने वाला जो आदमी है उसने भी मास्क पहनना है। ये दिन ना बदल जाएंगे, लेकिन अभी के तौर पे हमको हर इंसान को हुआ होगा ऐसे समझ के अगर हम बर्ताव करें तो ये बीमारी मुझे नहीं लगेगी। अब बच्चों को सबसे बड़ा बीमारी लगने का चांस किधर होता है, वो तो नजदीक सिर्फ आके होने से नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस होता है वो कैंटीन में जाएंगे। कैंटीन में जाते वक्त दोनों दोस्त एक में के सामने बैठेंगे। जब ये सामने बैठेंगे तो चाय पी रहे या कुछ खा रहे हैं, वो मास्क निकालेंगे। उन्होंने अगर मास्क निकाला दोनों ने और दोनों इकट्ठा खाना शुरू कर दिए तो वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर हम क्या बोलते हैं कि आपको अगर खाना है तो आप एक में के सामने बैठ के मत खाइए, उसमें 2 गज की दूरी रखने की कोशिश करिए। और जहां तक हो सके हम बोलते हैं कि एक आदमी चाय पी रहा है तो दूसरे ने जब ही मुंह खोल के चाय पीना, ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये आप कोई स्टूडेंट से बताइए, वो बोलेगा मैं कैसे खाना खा पाऊंगा। लेकिन अब हमको एक समझना है, मुझे अगर बच के रहना है, मुझे अगर मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त है उनके जान को बचाना है या उनके बुजुर्गों को बचाना है, तो थोड़े दिन तो हमको ये ऐसे संभल के रहना ये जरूरी पड़ेगा। हमको एक दूसरी बात याद रखना है, क्या मैंने अगर गले में हाथ डाल के बात किया या मैंने कभी वो कैंटीन में बैठ के आमने सामने बैठ के खाना खाया, या मैं जब बच्चे जो रहते हैं आपस में आप देखते हैं थोड़ा सा प्लेट में का वो एक जन खाएगा, दूसरा हिस्सा जो है दूसरे को देगा, ये अगर मैंने नहीं किया तो क्या ऐसे होगा कि मेरा दोस्त ये समझ जाएगा कि ये मेरे से दूरी रख रहा है, अब ये मेरा पुराना दोस्त रहे वैसा नहीं बर्ताव कर रहा है। एक समझना बहुत जरूरी है, ये जो पुराने हमारे ख्याल थे वो थोड़े दिन भूल जाओ, हमको थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखना, इसके लिहाज से रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बनेगा। अब उसको ऐसा कौन सा प्यार है हमारा
जो बगैर हाथ लगाए वो दूसरों को एक्सप्रेस नहीं होता, बगैर इकट्ठा खाए वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ये आपस की समझ होती है। आखिर आप समझते हैं, आप देखिए, आप तो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, हाँ, व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल लगाते हैं, आपको आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार कोई अमेरिका में भी होगा, आपको उतना ही आनंद होता है जैसे कोई वो सामने बैठ के बात कर रहा है। ये तो सोच की बात है ना। सामने वो फिजिकली दिख रहा है इसलिए मैंने सारी चीजों को भूल जाना, ये गलत बात होती है, ये हमने नहीं करना है ना। थोड़े दिन हमको इसका याद रखना, इसकी ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात हमको याद रखना है कि हमको जो होता है, हमको आप ये जो बीमारी जो फैलती है, ये बीमारी फैलने में वो एयरबॉर्न है करके बहुत हवा चली है ना। ये हवा के वजह से हमने बहुत डरना है क्या? बहुत डरना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी एयरबॉर्न ढंग से आपको आपके शरीर में आ सकती है सिर्फ अगर सामने वाले व्यक्ति को ना उसको भी बीमारी रहे, उसने भी मास्क नहीं पहना है और वो सेफ डिस्टेंस उसने नहीं रखा है, तो वो मुझे बीमारी एयरबॉर्न ढंग से आएगी। इसका मायना ये नहीं होता है कि ये विषाणु ऐसे हवा में तैरते आएगा, मैं कहीं भी बैठा होगा वो हवा में से आएगा, मेरे नाक में से चले जाएगा और मुझे बीमारी लगेगी। ये मत समझना। इसका मायना क्या है? आप अकेले हैं तो आपको डरना नहीं है, आप अपने रूम में रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं है आपको ये बीमारी लगने की, आप अलग से रहिए। आप बाहर किसी को मिलने जाते हैं तो दोनों ने वो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहना बहुत जरूरी है। एक चीज हम सीख रहे हैं कि ये जो हम बोलते थे पुराने टाइम पे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसलिए कई सरफेसेस पे रहता होगा ना, सरफेसेस पे रहता है तो उसकी वजह से बीमारी लगती होगी। इसलिए आप देखते हैं हर घर घर में क्या है, कोई भी बाहर से दूध की भी थैली आई तो उसको सफाई करने में 5 मिनट लोग गंवाते हैं। उससे बीमारी लगती है क्या? शायद नहीं लगती है ना। इतना उसका जो रिस्क हमने देखा है उतना रिस्क उसमें नहीं होता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जब चलते हैं, जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने क्लास में बैठेंगे, तो आपको क्या डर लगेगा? मैं कहीं हाथ तो लगाया नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो अपना हाथ कहीं ना लगे ना, वो रेलिंग को भी ना पकड़ूं, किसी दूसरी चीज को ना छूं। इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक याद रखना है, मैंने कहीं और अगर हाथ लगाया तो वो हाथ से मैंने अपने मुंह या नाक को हाथ लगाने के पहले मेरा हाथ धो लेना है साबुन से। साबुन से धोना, अब लोगों को क्या लगता है ये क्या साबुन इतना पावरफुल रहता होगा? क्योंकि साबुन तो अक्सर मैं इस्तेमाल कर, तो अलग अलग हमको बाहर मिलते हैं, वो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो महंगे होते हैं उसमें शायद ज्यादा ताकत रहती होगी। ये सही है क्या? ये सही नहीं है। साबुन ऐसे भी बहुत अच्छा पावरफुल डिटर्जेंट है। साबुन आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो साबुन के इस्तेमाल की वजह से ये विषाणु, आप अगर 20 सेकंड साबुन लगा के अपना हाथ धोए तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब मैं खेलने जाऊंगा तो क्या करूंगा? खेलने जाते वक्त हमको याद है कि हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं, लेकिन टेम्परेरीली हमको क्या करना पड़ेगा पता है? जितना हम ये खेलकूद सबके साथ मिलके जो करते हैं वो करना थोड़ा सा टालना हमारे लिए अच्छा है। आपने देखा होगा वो सब लोगों को अलग रखा गया, उनको तकरीबन 14 दिन उनको प्रिजन में रखे हुए जैसे रखा गया और फिर उनको अंदर छोड़ा गया, क्योंकि हर इंसान को, किसी को भी जो प्लेयर्स थे उनमें किसी को इन्फेक्शन नहीं है, ये देखने के बाद में ही घुलने का मौका उनको मिला, ये आपस में बात करना या खेलना। लेकिन क्या हम ये अपने कैंपस में कर पाएंगे? कैंपस में करने आना मुश्किल है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? जहां तक हो सके इस किस्म का व्यवहार
हमको टालना पड़ेगा। अब आप आगे देखिए अच्छा क्या हो रहा है। अभी क्या है, ये बीमारी के खिलाफ दवा तो बहुत अच्छी नहीं मिली है, लेकिन आपको वैक्सीन मिली है। वैक्सीन जो होती है, अलग अलग किस्म के वैक्सीन हैं। अभी 3 अलग किस्म के वैक्सीन आए। सरकार ने बोला 18 से 45 साल के लोगों को भी आप वैक्सीन दे सकते हैं। अब ये वैक्सीन लेने से फायदा क्या होता है? वैक्सीन अगर मैं ले लूं तो उसका फायदा क्या होता है? मुझे सीवियर कोविड, मेरी मौत ये कोविड के वजह से होने का चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो जाता है। अब इसका मायना क्या है कि मैं ये बीमारी से मरूंगा तो नहीं अगर वैक्सीन लूंगा तो, लेकिन क्या ये आदमी को इन्फेक्शन होने का चांस भी 0% हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। उसको अगर एक्सपोजर होता है तो उसको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, उसको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अब 1845 साल के उम्र में आप लोग जो सारे लोग रहेंगे, उनको अगर हमने वैक्सीन दिया तो क्या होने वाला है? आपको पहले भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने का चांस था ना। जो भी इन्फेक्शन होगा वो ज्यादातर यंग लोगों के अंदर या तो एसिम्प्टोमेटिक होता है या माइल्ड होता है। यंग लोगों में मौत होने का डर बहुत कम होता है। अब मैं वैक्सीन लूं तो वो और ज्यादा, अगर मेरा एक्सपोजर अगर हो गया तो ज्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होगा। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है? अगर मेरे दोस्त जो है उन्होंने वैक्सीन लिया है, उनको अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है ना, कोई लक्षण नहीं है, तो उसकी वजह से बीमारी दूसरे को लगने का भी चांस आएगा। लेकिन हमको एक याद रखना है, हम उसको भी रोक सकेंगे अगर हम ये याद रखें कि मैं भले वैक्सीन लूं या वैक्सीन ना लूं, मैंने मास्क पहनना, वो सेफ डिस्टेंस रखना, इसका अगले 2 साल अगर पालन किया तो हमको कोई तकलीफ होना नहीं है, किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी। ये सबसे बड़ी बात हमको सीखना है। यानी मैंने वैक्सीन लिया तो अभी मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे समझना हमारे लिए गलत होता है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमको मास्क पहनना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा वैक्सीन के बारे में, जब चर्चा होती है तो बार बार लोग सुनते हैं कि नया वेरिएंट आया है, थोड़ा बदल के विषाणु आया। तो अभी वो वैक्सीन को मानता है, लेकिन वो शायद आगे चल के वैक्सीन को मानेगा नहीं। इससे कितना डरना है? बहुत ज्यादा डरना नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अगर वैक्सीन दे पाऊं और उनको मौत का डर मैं अगर कम कर पाऊंगा, तो मुझे वेरिएंट से इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? हमने पहला प्रिंसिपल बताया, जिस किसी को वैक्सीन मिली उसने मास्क पहनते ही रहना है वैक्सीन मिलने के बावजूद भी। अगर ऐसे हुआ तो हमको याद रखना है, वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन होने का भी चांस थोड़ा कम तो होता है, लेकिन मास्क पहनने से वो वेरिएंट रहे या पुराना विषाणु रहे, ये दोनों विषाणु को वो रोकने में काफी कामयाब होता है। इसलिए उसको मास्क पहनने की वजह से वेरिएंट आया या नहीं आया, उससे कोई तकलीफ हमको होने वाली नहीं। हमको मास्क का इस्तेमाल करते जाना ये हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब ये वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेने की बात जब होती है तो सब डरते किस चीज से है कि ये वैक्सीन लेने के बाद में कोई बड़े साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। बहुत बड़े कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हमको क्या करना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना है जैसे डॉक्टर बताएंगे उसके अंतर से लेना है। जैसे हमने समझो कोवैक्सीन की बात की तो 2 डोज के वैक्सीन हैं, उसको 28 दिन के अंतर से लेना है। समझो मैंने कोविशील्ड की बात की तो कोविशील्ड की जो वैक्सीन होती है वो पहला डोज लेने के तकरीबन 4 महीने के बाद में दूसरा डोज लेना है। वो स्पुतनिक की वैक्सीन होती है, वो जो नई और एक अप्रूव हुई है, वो स्पुतनिक की वैक्सीन 3 हफ्ते के बाद में लगाना पड़ता है, पहला डोज लेने के बाद में। ये आपको तो वो डॉक्टर सलाह देंगे कि कितने अंतर से लेना है, लेकिन वैक्सीन में साइड इफेक्ट होंगे इसलिए न वैक्सीन लेना ये गलत रहता है। अब सबसे बड़ी बात हमको याद रखना है
कि वैक्सीन लेने के बाद में लोकल साइड इफेक्ट काफी होते हैं। जैसे बुखार होगा, सरदर्द होगा, या उसको थक गए वैसा महसूस होगा, फटीग होगा, या हेडेक ज्यादा होता होगा। इस किस्म के माइनर जो लक्षण होते हैं वो वैक्सीन का पहला डोज मिलने के बाद में 2 दिन तक रहते हैं। आमतौर पे भी आपको याद होगा, आपके घर में आपने किसी बच्चे को अगर वैक्सीन दिया तो उसको हम पैरासीटामोल पहले ही खिला डालते हैं कि नहीं, उसको बुखार नहीं आना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। उस किस्म की चीज आप में भी होने वाली है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे डरना नहीं है कि ये क्या कोई बड़ी बीमारी होगी या कुछ होगा। दूसरा डोज भी हमको लेना है, ये हमको याद रखना है। अब आपने देखा कि ये जो वैक्सीन लेना है, वैक्सीन के इसमें किल्लत आ रही है, आपको डोसेस अभी मिल नहीं रहे हैं। अब ये महीने के अंत तक वैक्सीन के डोसेजेस मिलने में बहुत आसानी होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में हमको वैक्सीन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमको एक चीज याद रखना है, ये सारे इंटरेक्शन में आपने आपके दोस्तों से बच के रहना है, वो दोस्त ने भी आपसे बच के रहना है। और सबसे बड़ी बात, आपके जो टीचर्स रहेंगे वो टीचर्स तो बुजुर्ग हैं। अब वो बुजुर्गों के सामने जब आप जाएंगे तो आपको उनके भी बचाने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको भी पता नहीं है आपको बीमारी है या नहीं है, आपको ये सिम्टोमेटिक बीमारी होगी। तो 6 फीट का डिस्टेंस रखना ना, ये सिर्फ इज्जत देना नहीं है टीचर को, उसकी टीचर की जान बचाने के लिए भी बहुत बहुत अच्छी चीज करके हो जाएगी। ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है। अब रहा सवाल, ये वैक्सीन लेना शुरू हो जाएगा। जब आप ये देखेंगे कि वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये दिसंबर जो सरकार क्लेम कर रही है ये सही है। दिसंबर तक सारे के सारे 18 साल के ऊपर के जो लोग वैक्सीन लेने के लिए जो तैयार है उनको वैक्सीन देने में हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने वैक्सीन सबको दी तो आपको एक असर दिखाई देगा, सारे कैंपसेस स्लोली खुलना शुरू हो जाएंगे ना। तो वैक्सीन मिलना आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात अभी क्या हो रहा है, अभी जब ये सारे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है, आप घर में बैठे हैं, एक तो लोगों को टेंशन आता है कि क्या मुझे बीमारी लग पाएगी, क्या मैंने डरना चाहिए। लेकिन बहुत सारे टाइम पे आप तो यंग लोग हैं, यंग लोगों में एक साइकोलॉजी होती है कि मुझे कुछ नहीं होगा ना क्योंकि मैं एकदम स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई बीमारी असर नहीं कर सकती, मुझे बीमारी लगेगी ही नहीं। प्लीज ऐसे मत सोचना। एक चीज याद रखो, बीमारी कोई शरीर देख के आती नहीं ना, ये स्ट्रांग है क्या वीक है, ये इस किस्म की बीमारियां जो है किसी को भी हो सकती है। तो खुद स्ट्रांग हो करके समझना नहीं। कुछ लोग क्या सोचेंगे, मैं कोई काढ़ा ले रहा हूँ या प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कोई दवा ले रहा हूँ, ऐसी चीजों से मुझे बीमारी नहीं लगेगी। अभी तक कोई भी ऐसे किस्म का एविडेंस कहीं भी इतना रोबस्ट मिला नहीं है। ऐसे चीजों पे भरोसा रखना शायद अपने लिए सही नहीं होगा, ये भी हमने समझना है। अभी क्या हो गया है, अभी आप जैसे सर ने बताया, धर साहब ने बताते वक्त बोला 1 साल चला गया ना, कि 1 साल से लोगों ने कैंपस ही देखा नहीं है ना, एक बैच ऐसी है। तो अभी आप सोचिए 1 साल से घर में बैठे हैं तो उसका असर तो बुरा होता है। आप सोशलाइजेशन खराब हुआ। अब भले दूसरी बात भी हमको सोचना है, माँ बाप हमको बहुत अच्छे उम्मीद से कॉलेजेस में डाले हैं कि आप अच्छा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया। अब जब ऑनलाइन क्लास शुरू होता है ना, तो अक्सर जब मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अपने मन में क्या विचार आएगा, चलो मैं वो टीवी बंद कर देता हूँ, वो सिर्फ ऑन करके रख दूंगा, जो भी है बाद में पढ़ लेंगे। प्लीज ऐसे मत करना। एक तो ये एडिशनल एफर्ट आपको पढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये इतने खराब टाइम के इसमें भी आपको एक याद रखना है कि आपको ये बार बार समझना है कि मैं शायद स्कूल में ही बैठा हूँ, मैं ये कॉलेज के अंदर ही बैठा हूँ, और मुझे समझना है, क्योंकि सीखने का मौका गवाना, इसका पनिशमेंट हमको अगले जिंदगी में मिलता है
न जब आप बड़े होंगे ना तो आपको याद आएगा कि आप अगर उसको ध्यान से पढ़े नहीं थे तो आपको बाद में समझ में आता है वो पहले अगर मैं करता था ना तो अच्छा होता था। लेकिन ये मौका आपको क्यों लाने देना है? एक याद रखना है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस अगले 3-4 महीने, मेरे हिसाब से 3-4 महीने के बाद में काफी सिचुएशन बदल जाएगी, वो कॉलेज के कैंपस भी भरे वाले हमको नजर आएंगे। लेकिन हमको वो 3-4 महीने गंवाना नहीं है। सीखने का मौका कभी भी गंवाना नहीं पड़ता है। आप एक चीज याद रखना है, मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बोलता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। मुझे उम्र मेरी क्या होगी, तकरीबन 28-29 साल की थी। उस टाइम पे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ये दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मेडिकल फील्ड में मानी जाती है। वहाँ सरकार ने बोला एक फेलोशिप है, आप 1 साल के लिए चले जाओ। वो फेलोशिप में मुझे मेरी फैमिली लेके जाने का भी मौका था, क्योंकि वो उतना पैसा दे रहे थे, और फैमिली लेके जाता था तो फेलोशिप भी ज्यादा मिलती थी। लेकिन उन्होंने जब पूछा तो मैंने क्या सोचा, मैंने मेरे वाइफ से चर्चा की। मैं बोला अगर समझो मैं साथ में लेके गया तो होगा क्या, मैं पढ़ाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या बार बार बाहर जाने वाला नहीं, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसकी फीस मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं पाता हूँ मैं दे पाऊंगा खुद करके, 1 साल की फीस। मैं अगर वहां जाने वाला हूँ तो वो पढ़ने के लिए जाना, मैं आपको सबको साथ में लेके गया तो मेरा ध्यान चले गया तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। मैं देश के लिए जा रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ाई करके आऊंगा। 1 साल मुझे जिंदगी में कुछ पकाने को आता नहीं था, कुछ भी नहीं लेकिन वहां डट के लड़ा। मैं नॉनवेज नहीं खाता तो सारे किस्म के प्रॉब्लम थे, तो फिर भी मैं लड़के अपने आप सिर्फ वो दाल फ्राई राइस बनाता था और वो ही खा के साल भर गुजारा किया। क्यों? एक ही तमन्ना थी, सीखने का मौका अवसर गंवाना ये बहुत गलत बात होती है। सीखने के लिए आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए, और वो पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह जब आप पहुंचते हैं, जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी में अभी आपके कॉलेजेस में जो दाखिल हुए हैं, उसका फायदा करवा लेना ये अपने हाथ में होता है, हमने करना है। ये प्लीज स्विच ऑन करने की बात नहीं करना है। मैं आपको दूसरा उदाहरण उस टाइम पे बोलता था, वहां तो क्या होता है, कोर्सेस यानी क्रेडिट्स लेना है। वहां पास होने के लिए 80 क्रेडिट लेना पड़ता था। उसमें मैंने देखा मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 110 क्रेडिट था। 80 क्रेडिट होने के बाद में मेरा जो एडवाइजर था वो मुझे बोला अभी और आगे क्यों ज्यादा जमा कर रहा है, तू तो पास हो गया, 80 क्रेडिट का तेरे हाथ में हो गया। मैं उसको एक ही बोला, मतलब मेरी उम्र देखो 28 साल का हूँ, अभी जो सीखने आया हूँ, और एक बार मुझे वापस आने को अगर किसी ने बोला वापस आके फिर पढ़ाई करो तो वो तो होना नहीं है मेरे से। मुझे 110 क्रेडिट लेने तो दो, वो मैक्सिमम परमिसिबल है, क्या तकलीफ होगी। ये क्यों बोला, इसका डिविडेंड मुझे आगे मिला, क्योंकि ये जो 1 साल मेहनत किया उसकी वजह से सोचने का ढंग बदल गया, कैसे काम करना चाहिए बदल गया। लेकिन ये मौके गंवाना मत ना। आपने ये जो ऑनलाइन सिस्टम अभी चालू है उसका फायदा गलत ढंग से नहीं लेना है। हमको जितना हो सके वो जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उतना फिजिकल ट्रेनिंग के उतना उसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना, हम तो इंसान हैं, आप जब वो कैंपस पे आएंगे, कैंपस में आने के बाद में आपको पता चलेगा कुछ लोगों को फियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको लगेगा अरे मेरे 2 दोस्त सामने आए थे, वो थोड़ा ना दादागिरी करने वाले लोग थे, वो दादागिरी वाले जो लोग हैं उनको शायद बीमारी होगी ना, वो मास्क पहनते हैं क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, और वो डर की वजह से उसको एक किस्म का डिप्रेशन, फियर कि मुझे इन्फेक्शन होगा, इस किस्म की बातें होने का डर रहेगा। एक याद रखना है, जब तक आप एहतियात बरत रहे हैं आपको डरने का उतना कारण नहीं होता है। इस किस्म से डिप्रेशन आना भी गलत रहेगा। ये जो डिप्रेशन है, ये आप में के कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में थे, और वो फाइनल ईयर में रहते वक्त आपको वहां कॉलेज जाने नहीं आ रहा है, अब मुझे कोई जॉब देगा या नहीं देगा। एक याद रखो कि ये सिर्फ डिग्री और आपका ज्ञान देखते हैं,
जब आप जॉब को जाते हैं। आप अगर अच्छे हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, तो आप कोविड के टाइम पे डिग्री मिले वाले हैं या कोविड के पहले मिले वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, अपने आप पे भरोसा रखो, उतनी ही मेहनत करो। जितना आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो आपको उसमें तरक्की ही होगी, क्योंकि जब आप भरोसा रखते हैं कि मैं कुछ करके बताऊंगा, तो आप मेहनत भी उतना ही करने का चांस होता है। थोड़े सपने मन में रखिए कि आप अच्छे ढंग से आगे बढ़ने वाले हैं। ये मैं नहीं जा पा रहा हूँ कॉलेज को, इससे अपनी मेंटल हेल्थ खोना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपके हाथ में है। आज जो आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, आपके जमाने में तो ये तो अच्छा है, आपको इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी हो गई, आपके पास समय ही समय है। आप अभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करना नहीं पड़ता है, वो दोस्तों में टाइम गंवाने का चांस वो भी कम हो चुका है। क्या मैं खुद कंसंट्रेट करके और कुछ ज्यादा पढूं जो मेरे सिलेबस के बाहर है उसी विषय के अंदर, क्योंकि मुझे वो पसंद आ रहा है? ये मौका है, इसको गंवाना नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको आखिरी में बोलूंगा, बाद में आपको कुछ पूछना है तो वो भी जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा ना, लोग ये कोविड को ना बुरी चीज समझते हैं ना। मुझे अगर आपने पूछा इसमें कि थोड़ी अच्छाई देखने की कोशिश करो, हम लोग जो बने थे ना, वो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मैं बाहर इतना घूमूंगा, मैं ना दोस्तों के साथ में ऐसे करूंगा, हमको ना जिंदगी का पर्पस हम भूल गए। उसमें जिंदगी का पर्पस ये होता है, अपने फैमिली में प्यार बांटो, अपने लोगों के साथ अच्छा रहो। ये जो था ये सारा चले गया, हम दिखावे में घुस गए थे। जो हर चीज है, आप एक सेल्फी निकालेंगे, मैं कहाँ हूँ, मैं समंदर के वहां खड़ा हूँ। अरे वो सेल्फी से क्या लेना देना है? आप अपने घर में अपने बुजुर्गों के साथ या जो आपके रिश्तेदार है नजदीक वाले, उनके साथ अगर दो निवाले अच्छे ढंग से खाते थे खुशी से, ये हम भूलना शुरू हो गए थे। एक फायदा हुआ है, ये जो लॉकडाउन हुआ, हम लोग जो अंदर बैठे, हमको जिंदगी की सही चीजों के ऊपर ना सोचने का टाइम मिला है। मुझे क्या करना है जिंदगी में, इसके बारे में सोचने का टाइम मिला है। आप उसको गंवाना मत। ये गलत था, ये बहुत उसकी वजह से तकलीफ हो रही, ये मत समझना। आप एक चीज याद रखना है, आप जैसे बड़े होंगे आपको एक पता चलेगा, आपको सोचने को भी टाइम कम मिलता है ना। आप बार बार दूसरों की वजह से, दूसरे जो सवाल पूछते हैं उसके जवाबों के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन आज आपको समय मिला है इंट्रोस्पेक्ट करने को, मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है ये सोचने के लिए। और आपको ये तो आप आगे थोड़ी उम्र हमारे वजह से, जब आप बूढ़े बन जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि जो सही चीज होती है ना, उसको हम मैच्योर होने के बाद में सीखते हैं। लेकिन आपको क्या हुआ है, उम्र कम रहते हुए जो जिंदगी का मकसद होता है कि मैं मेरे फैमिली के साथ रहूं, खुशी से रहूं, मैंने एंजॉयमेंट यानी क्या है उसकी डेफिनेशन, सेटिस्फैक्शन उसकी डेफिनेशन, पैसा ही सब कुछ नहीं है उसका अंदाज, ये होने का, अपनी लाइफ प्लान करने का समय आया है। इसको खोना मत, ये बीमारी को डरना मत। ये न्यू नॉर्मल बोलते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं मेरा मेडिकल कॉलेज के टाइम का जब फोटो देखता हूँ तो उस टाइम पे क्या था, वो पैंट पहनने का तो एक बड़ी बेल बॉटम वाली पैंट रहती थी वो इतनी लंबी रहती थी। मैं बोलता है देखता हूँ तो बोलता था ये कैसे चल भी कैसे पाता था उस टाइम पे, लेकिन वो फैशन थी। वो फैशन जब थी तो मैंने बेल बॉटम भी पहन लिया ना। लेकिन जब ये समय आया तो मुझे मास्क पहनना, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, ये बहुत खतरनाक लगता है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हमको दूसरी चीज एक समझना बहुत जरूरी है कि ठीक है ये न्यू नॉर्मल है, इसका कुछ फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। आप आज के तौर पे कोविड के समय आप देखिए, किसी को सर्दी जुकाम दूसरे कोई बीमारी से हो रहा है, किसी को दस्त लगे हैं, आप सुनते हैं
कोई बीमारियां दूसरी लग रही है, कोई बीमार हुआ करके डॉक्टर के पास जाना चाहता है, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ना सारे हाइजीन के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया हूँ। बार बार हाथ धोता हूँ, बार बार मास्क पहन के जा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम हो गए। आप देखेंगे टीबी की वैसी बीमारी वो वैसे भी मास्क पहनने से कम होगी। तो हम उसके तरफ निगेटिवली देखने के बजाय पॉजिटिवली देखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और वैक्सीन जैसे ही आपको मिलती है ज्यादा चूजी मत बनो कि वो वैक्सीन, वो कौन सी अच्छी वैक्सीन होगी वो मुझे चाहिए। जो मिल रही है वो ले लो, पहले अपनी जान बचाना भी है, बाद की लग्जरी बाद में आएगी, जब होगा जब देखा जाएगा। अभी हमको 4 से 6 महीने का समय ये थर्ड वेव आने के पहले मिलेगा। ये वायरस पे डिपेंडेंट है। वायरस वो अगर वेरिएंट करके आ गया तो शायद जल्दी भी आएगा, लेकिन खुद की जान बचाना अपने हाथ में है। ये बीमारी से मत डरो, और ये जो डिप्रेशन लॉकडाउन में आ रहा है उससे अपना फोकस मत गवाओ। खुद के जिंदगी के बारे में सोचो, खुद को क्या चाहिए जिंदगी में उसके बारे में सोचो। आज के तौर पे आप अगर लोगों में देखे, लोग बोलते हैं लेकिन अभी कोई रेस्टोरेंट में जाके खुशी हो गई इसलिए रेस्टोरेंट में जाके बड़ी पार्टी दे रहा है। ये पार्टी देने से सिर्फ अपने को सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये जो सोच थी वो तो चले गई। अब आप घर में सब लोगों के साथ में बैठ के जब हंसते खेलते हैं उस टाइम पे आनंद होता है। ये हर चीजों के पहलू के बारे में जिंदगी में सोचो। ये समय तो अच्छा नहीं था, ये मानता हूँ। ये सिखाना कि जिंदगी कैसे जीना है ये हम पुराने समय में भी सीख सकते थे, लेकिन शायद उस टाइम का जो डिस्ट्रैक्शन होने का चांस था वो ये कोविड के समय नहीं है। जिंदगी के बारे में अच्छा सोचो। आप जितना अच्छा मेहनत से काम करेंगे अपना देश बहुत बड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर मेरा देश अगर अच्छा हो गया तो हम तो खुद अच्छे ही हो जाएंगे, हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब आबादी इतनी बड़ी होती है तो हर इंसान ने सोचना है कि मैं गरीबों के लिए क्या करूंगा, क्योंकि हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है। हमारे यहाँ आप, मैं नंबर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आमतौर पे सोशली चैलेंज्ड पॉपुलेशन, वो इकोनॉमिकली रहे या कास्ट की वजह से होगी या उनके प्रोफेशन से होगी, इतना ज्यादा नंबर है। उनको अगर हमको हमारे बराबरी का करके लाना है तो आप और हम बहुत सोच समझ के, ये जो समय मिल रहा है उसमें मैंने क्या करना है, मैं देश को क्या दे पाऊंगा। घर वालों को तो खाना देना या उनके साथ रहना, इसमें बहुत पैसा नहीं लगता है, बहुत मेहनत लगने वाली नहीं, लेकिन हमको आगे की सोच करना है। निगेटिवली मत सोचो, आपको बीमारी लगेगी नहीं, ये मैं एक शुभेच्छा आपको देता हूँ। जल्द से जल्द वैक्सीन लो, और अगले 1-2 साल मास्क पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ के चलो। और उसको कभी ना कभी तो निकाला तो मैं खुली सांस ले पाऊंगा, खुली सांस नहीं, सांस ले पा रहे हैं, इसमें खुशी ऊपर वाले का शुक्रिया हमने अदा करना चाहिए। जो भी दे रहा है, जिंदगी इतनी अच्छी दे रहा है, हमको दूसरे की जिंदगी में तरक्की करके, हम जो हमारे इसमें बोलते हैं ना कि हमने हमारा कुछ त्याग दिया, और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा होता है। अपने साथ बाकी लोगों को साथ में लेके हमारे बराबरी का बना के हम आगे का सपना, अगर अपने देश का कभी तो भी नंबर 1 बनेगा दुनिया में, कि जो सुपर पावर करके पहचाने जाएगा, वो बनाने का पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपका कॉलेज इतना अच्छा है, वो पूरा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ रिसेप्टिविटी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir, for